हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू गर्ल्स चैनल वेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक statistics today. Class 11th students, I hope you all are ready to study the chapter statistics. Boring लगता है ना? Yeah, it involves a lot of calculations, I understand, but don't worry. The aim of today's class is I'm not going to make you do a lot of calculations. All you have to do is write down the formulas, because there are so many formulas and students get confused often when to use which formula. That's step one. Step two is, of course, a lot of calculations, but then you do it when you have time. The second step is, of course, you have to solve a lot of questions. See, I am going to tell you what are the important things in this chapter, what is this chapter all about. I will explain you the concept, the reason behind each and everything. I'll give you some shortcuts, some nice magical tables in the end, which will summarize the entire topic in one table. ठीक है, ये सब मैं करूंगी, लेकिन अपना अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप होगा ना यार, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैम, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. वी विल solve the questions from textbook. सब questions करने के नहीं are not all questions. You just have to cover all the types. That means the number of formulas I am going to give you today, you just have to solve those many number of questions to make sure you are able to apply the formula. And end में miscellaneous एक exercise है. So ये बहुत बच्चे ignore करते हैं. miscellaneous exercise. इस chapter का miscellaneous exercise बहुत ही ज़्यादा important है. I mean the remaining exercise 15.1, 15.2 ये तो चलो ठीक है, manageable है, direct straightforward formula application है, but ये miscellaneous if you skip you will not be able to score 80 on 80. बच्चों, ये 80 on 80 का खेल होता है सब कुछ. 60, 70 निकल जाएगा, बट 80 on 80 के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे miscellaneous exercise. और इसे miscellaneous के लिए मैं आपको एंड में कुछ सपोर्ट भी देने वाली हूँ, दैट विल मेक इट सिंपलर. सो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर? पहली बात तो ये चैप्टर कुछ नया नहीं है हमारे लिए. क्यों दोस्तों? वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन क्लास 11th ऑल्सो, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी वी डिड इन क्लास 10th, just like probability we have done in class 10th, then again in 11th. You're going to do probability again in class 12th. Statistics also we have done in class 10th, we will be doing in class 11th, but it's not there in class 12th. तो यहीं पे पढ़ के इसको खत्म करना है बच्चों, आगे नहीं है ये. तो क्या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब अगर आपकी हालत थोड़ी खराब है, आप ये चैप्टर स्किप करना चाहते हो, कर सकते हो. ओनली यू नो, इफ यू डोंट नॉट एम टू complete the entire syllabus, if you want to just pass the exam, then yes, this can be one of the chapters which you can skip, because later on it's not going to be used much. In class 12th ये कहीं पे आने नहीं वाला है. और even in JEE बहुत ज़्यादा इसका कुछ questions आता नहीं है. We do not see much from this chapter. Yes, but if you say मैम हम probability skip कर दें, नहीं. मैम हम limits, continuity, limits derivative skip करें, नहीं. No. ट्रिग्नोमेट्री स्किप करें, नो. राइट? तो ये हमारा एडवाइस है. चलो रिवाइज करते हैं जो भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है. सो जो डेटा है वो दो टाइप में, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा मीन्स, लेट्स टॉक अबाउट यू गाइज, यू आर द स्टूडेंट, यू आर माई क्लास, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स पेपर. सो इफ आई से अनग्रुप डेटा, the different score student will be obtaining. किसी को 60 मिल गया है, किसी को 36 मिला है, किसी को 80 on 80 मिल गया, 1 मिला है किसी को 0.99 मिला. So there are various data. This is a straight data, discrete data. ये ungrouped में आ गया. Straight away xi दे रखा है, करेक्ट. फिर होता है ग्रुप. नाउ अंडर ग्रुप यू हैव टू कैटेगरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मींस यू हैव द डेटा एंड यू आल्सो हैव इट्स फ्रीक्वेंसी. यानी कि 80 कितने बच्चों को आया? 2 बच्चों को. 10 मार्क्स कितने बच्चों को आया? 1 बच्चे को. 36 कितने बच्चों को आया? 5 बच्चों को, है ना. You have the data and its frequency, xi and fi.
and continuous means you have the interval, the class interval and the frequency. So 0 to 10 marks, how many students? Then 10 to 20 marks, how many students? 20 to 30 marks, how many students? And so on. तो ये ग्रुपिंग में आ गया. These are the three types of data. Moving ahead, this is something which you have already studied, mean, median, mode. Yes or no? It's called as measure of central tendencies. ये हमें डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है. मीन टेल्स मी द एवरेज वैल्यू, मीडियन टेल्स मी द मिडल मोस्ट वैल्यू, मोड टेल्स मी द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है वो मोड बताता है. करेक्ट. तो ये हमारे कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज है. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर का एम क्या है? डेटा को स्टडी करना. अब डेटा आ चुका है इस जमाने में डेटा चल रहा है बच्चों, सब जगह डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस है ना. बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं वन आफ्टर द अदर. सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ डेटा. देयर इज बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स. ये चैप्टर पे पूरा का पूरा बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर्स डिग्री, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स. टॉप कॉलेजेस से निकलते हैं बच्चे, है ना. देयर इज अ इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो पूरा स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है. तो स्टैटिस्टिक्स का जमाना है, हम मना नहीं कर सकते. हाँ भाई, ऐसा वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं है जहां पे हमें पेन पेपर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है. वी यूज लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर का यूज होता है पूरी तरीके से आजकल स्टैटिस्टिक्स में. लेकिन वो यूज करने के लिए आपको ये बेसिक्स तो समझना पड़ेगा ना. और जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना बच्चों, कच्चा लींबू है, मतलब वो बहुत ही बेसिक है. मीन, मीडियन, मोड. This doesn't give me the real information about a particular question, about a particular data. अगर मेरे पास किसी कंपनी का डेटा है तो मुझे उस डेटा पे कुछ प्रेडिक्शन करना है, कुछ एनालाइज करना है. The mean, median, mode is not sufficient, which you have done in class 10. You have to take it further, and that is what we are going to do in class 11. We'll take this further. क्यों, कैसे, ये थोड़ा टाइम बाद समझेंगे. Let's first revise how to calculate mean and median. Mode is not needed. ये तो सबसे फुद्दू डेटा है, हमें मोड की जरूरत नहीं है. मीन एंड मीडियन को हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 10 में. सो हाउ टू कैलकुलेट मीन, द एवरेज वैल्यू. द टू फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन कैन बी, मैं एक अच्छा कलर ले लेती हूं. या So you all know x bar is mean and it is summation of all the data divided by n, number of observations. Sum of all observation divided by number of observation. If the data is grouped, then you will simply multiply the data with frequency and divide by capital N. With capital N क्या है? Sum of all the frequencies. Sum of all the frequencies is capital N. N. तो ये grouped and grouped के लिए आ गया mean. है ना, सबको आता है. When I say grouped, it's discrete as well as continuous, both same formula. Moving on to median. What is median? It is the middlemost value. Middlemost value. In order to find the middlemost value, the first, foremost and necessary situation is arranging the data. Arrange the data in ascending or descending order. ये बहुत ही जरूरी है हर क्वेश्चन में. इन ऑर्डर टू फाइंड मीडियन, ये जरूरी है. अब मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, दैट विल सेव अ टाइम फॉर अस. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, if there are odd number of observations, median is n plus 1 by 2th observation. अगर टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कौन सा होगा? 5 plus 1 by 2, 6 by 2, that is third observation will be median. If the number of observations are even, then median is average of n by 2 and n by 2 plus 1th observation. यानी कि टोटल 6 डेटा है तो मिडल मोस्ट कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ दोनों होगा. 6 का मिडल वैल्यू क्या होता है? 3 and 4 both. So that is 6 by 2 and 6 by 2 plus 1. 3 and 4 वो दोनों का एवरेज. That is how we get median for ungrouped data या अनग्रुप्ड के लिए. अब डिस्क्रीट के लिए अलग है बच्चों, डिस्क्रीट के लिए अलग है. ग्रुप डेटा में भी मैं बात कर रही हूं डिस्क्रीट.
है ना, जहां पे एक्स आई और एफ आई दिया होता है। इन दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यार बच्चों पिछले स्टेप में भी था अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, यहां पे भी अरेंज। फिर एक चीज हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबको याद है, यू जस्ट कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सपोज ऐसा कुछ दे रखा है 3, 6, 12, 9, 8, 7, so you'll write cumulative frequency will be 3, 3 plus 6, 9, 9 plus 12, 21, 21 plus 9, 30, 38 and 45 so on। तो ये cumulative frequency निकालेंगे। Identify the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n by 2, ये बहुत important है। What is median? Identify the cumulative frequency which is equal to, अगर equal to नहीं है तो just greater than n by 2, this observation is required median। example चाहिए, यहां पे है, देखो xi is given, fi is given, you arrange the data in ascending order smaller to bigger, then cumulative frequency 3, 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12, sum of cumulative frequency is 17। now what is 17 by 2? It is 8.5। Can you see 8.5 here? No, but 8.5 or greater than 8.5, what is greater than 8.5? 9, so here the value corresponding to 9 becomes your median। the median is equal to cumulative frequency just greater than 8.5 is 9, hence the median is 3। ठीक है, equal to or just greater than। Now the same process ये discrete के लिए था, ऐसा ही कुछ process आप करोगे continuous के लिए भी। The median class, you will find out the median class, and what is median class? whose cumulative frequency is equal to or just greater than n by 2। so whatever you did here, n by 2 निकाला और उसके just equal या बड़ा वाला value, यहाँ पे instead of xi you will have class। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपको क्लास मिलेगा एक मीडियन क्लास। एंड देन यूज दिस फॉर्मूला, मीडियन इज L plus n by 2 minus CF upon F into H। It's important to know the value of H। L is lower limit of median class, F is frequency of the median class, H is width of the median class, CF ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास के जो पहले वाला क्लास होगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सपोज दिस इज योर इज योर मीडियन क्लास, तो उसके पहले वाले क्लास का जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट, एंड देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट द मीडियन। बराबर यही सब किया था हमने क्लास 10th में, कुछ और नहीं किया था ना। मोड इज नॉट नीडेड। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट मीन मीडियन। अब बात करते हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ सेंट्रल टेंडेंसीज, व्हाई डू वी नीड डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, उसके पहले यार 2 मेथड और है जो आपको बार बार इस चैप्टर में आएंगे, मैं एक ही साथ सॉर्ट आउट करती हूँ आगे जाने से पहले। एक है अपना स्टेप डिविएशन मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। आप बार बार ये वर्ड सुनोगे टीचर के मुंह से, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, क्लास 10th में भी वी हैव डन इट, बट आई विल रिवाइज इट वंस अगेन। स्टेप डिविएशन मेथड, व्हेन द डेटा इज टू बिग, क्लमजी हो जाता है कैलकुलेशन। ये जो एक्सआई है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, 300, 492 ऐसे बड़े, तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सबको बहुत टीडियस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डिसाइड करेंगे, ए अज्यूम्ड मीन होता है, यानी कि फॉर द एंटायर डेटा जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा दैट वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच। सो बेसिकली कन्वर्ट एक्सआई इनटू यूआई। आप एक नया डेटा फॉर्म करोगे, उन्होंने एक्सआई दे रखा है, आपको एक्सआई से तकलीफ है, आप एक नया डेटा यूआई फॉर्म करोगे। यूआई कैसे फॉर्म करोगे, यूआई इज एक्सआई माइनस ए। फ्रॉम ईच डेटा यू विल सब्ट्रैक्ट सम वैल्यू, ठीक है, और ताकि हमारा नंबर छोटा हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। एंड व्हेन यू डू दिस फर्दर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्स बार, सपोज आपको मीन चाहिए ना, सो मीन विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस यू बार, वेयर यू बार इज समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन और यू बार इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एन। अगर ग्रुप डेटा है
तो FI आ जाएगा, अनग्रुप्ड है तो FI नहीं होगा, है ना। तो ये आप यूज करोगे। फ्रॉम ईच डेटा यू सब्ट्रैक्टेड ए, सो इन द फाइनल मीन यू हैव टू ऐड ए। फाइनल मीन जो भी आया U बार, आपका नया डेटा U है तो जो भी फाइनल मीन आया उसमें A ऐड कर दो। ये स्टेप डिविएशन मेथड है, इसी को बच्चों शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं हम लोग। जब हम बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा होगा, व्हेन योर एक्स इज वेरी बिग, सपोज नंबर्स कुछ ऐसे हैं 1000, 1800, 2500, 3200, 4600, तो कैन यू सी इन ईच डेटा हम 100 तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 100 सबको डिवाइड कर रहा है, तो वाई नॉट कन्वर्ट xi इंटू yi। मतलब उन्होंने xi दे रखा है, हमको पसंद नहीं है, वो बहुत बड़ा नंबर है, हमने उसको yi में कन्वर्ट कर लिया। कुछ टेक्स्ट बुक, कुछ टीचर्स di लिखते हैं, इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, यू डोंट हैव टू वरी। So xi converted to yi, what is yi? When each data is subtracted by a I just explained, assumed mean, जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगा हर डेटा में से वो सब्ट्रैक्ट कर लो एंड डिवाइड बाय h कर लो, वेयर h इज ईदर द क्लास विड्थ अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, और इट इज द कॉमन डिवाइजर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 100, अगर डेटा हमारा मल्टीपल्स ऑफ 100 में है तो हम 100 से सब डेटा को डिवाइड कर देते हैं ना यार, सारे वैल्यूज को 100 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर्स इजी हो जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारा नया yi तैयार हुआ। तो आप जब मीन भी निकालोगे, when you will calculate the mean y बार, वो ऐसे ही निकालोगे yi अपॉन n, और यदि वो ग्रुप्ड है तो fi yi अपॉन कैपिटल N। सो व्हाट विल बी x बार, इट इज, देखिए आप a सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो a को ऐड कर दीजिए, h डिवाइड कर रहे हो तो h को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दिस विल बी योर न्यू मीन। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। पिछले में और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, नाम का फर्क है, यस, एंड इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम डेटा, ईच डेटा इज डिवाइडेड बाय सम वैल्यू h। द सोल पर्पस इज टू मेक द कैलकुलेशंस इजी। इसको स्टेप डिविएशन मेथड भी बोल सकते हैं आप, एक्चुअली ये शॉर्टकट मेथड से अच्छा आप इसको स्टेप डिविएशन ही बोलिए। शॉर्टकट मेथड में आगे बताऊंगी। दिस इज स्टेप डिविएशन। व्हाट आर वी डूइंग? डिवाइडिंग ईच डेटा विथ सम नंबर एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग। सो न्यू मीन मतलब जो नया, पुराना मीन x बार क्या होगा, जो नया मीन है उसको मल्टीप्लाई बाय h एंड देन ओवरऑल ऐड विथ इट, ये लिखना है आपको बुक में। ये दो मेथड हो गए। तो अब आते हैं वाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाज नॉट इनफ। अगर आप मीन मीडियन मोड पढ़ के कंपनी में जाते हो, अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप फंस जाओगे। सपोज योर कंपनी गिव्स यू 2 डेटा ऑफ 2 बैट्समैन विराट कोहली, बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, एंड दीज आर देयर रन्स इन डिफरेंट मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस सेम है दोनों के, उनके ये रन्स हैं, ठीक है। मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया, विराट एंड सचिन, दिल पे मत लेना कौन बेटर है कौन कम बेटर है, मेरा इससे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो अगर आप दोनों, आपने सिर्फ मीन मीडियन पढ़ा है, सो यू विल कैलकुलेट द मीन ऑफ बैट्समैन ए, मीन ऑफ बैट्समैन बी, मोड ऑफ मीडियन ऑफ बैट्समैन है, यू विल फाइंड आउट कि मीन भी 53, मीडियन भी 53, मीन भी 53, मीडियन भी 53, दोनों बैट्समैन का डेटा हूबहू सेम है। तो आप कंपनी को क्या जवाब दोगे? विच बैट्समैन इज बेटर, क्या बोलता है आपका डेटा, व्हाट विल यू एनालाइज? कंपनी से फायर हो जाओगे क्या? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना, उन्होंने पूछा बेटर कौन है तो मीन मीडियन तो काफी नहीं है, कुछ नया निकालना पड़ेगा। क्या है वो नया? यहां पे इसकी शॉर्टकमिंग है, क्या है वो नया? अगर आप गौर से देखो तो बैट्समैन ए में बहुत वेरिएशन है, हिज लोवेस्ट इज 0 एंड हाईएस्ट इज, वाह, सेंचुरी क्रॉस 117। वेयर बैट्समैन बी के बारे में अगर देखेंगे हम तो लोवेस्ट इज 46 एंड हाईएस्ट इज 53, मतलब बहुत पास में यार, नहीं 60, लोवेस्ट 46, हाईएस्ट 60।
तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विच मीन्स बैट्समैन बी के स्कोर ज्यादा कंसिस्टेंट है एंड बैट्समैन ए के स्कोर्स बहुत ज्यादा वेरिएबल है, मतलब बहुत दूरी है उनके स्कोर्स में, रन्स में। तो ये जो मेजर करने का तरीका है ना, दूरी, ये वेरिएबिलिटी फैक्टर जो हम मेजर करने लगते हैं, ये सब आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। हाउ डिस्पर्स इज योर डेटा, डेटा कितना फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स्ड है, दैट इज measures of dispersion, which we are going to study now in class 11th. So there are 4 measures of deviation, dispersion: range, mean deviation, variance, standard deviation. बच्चों एक और होता है quartile deviation, but again as I said, जब आप उसमें थोड़ा आगे जाओगे stats में, then you will study what is quartile deviation. For CBSE it is deleted. Some of the state boards still keep it, but बच्चों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है तो अच्छी बात है, निकाल दिया, आप लोगों के लिए अच्छा ही है। क्वार्टाइल डिविएशन इज नॉट देयर। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 4 वेरिएबिलिटी फैक्टर, दिस 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, इससे इजी तो हमको कुछ मिल ही नहीं सकता। इट इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो हाईएस्ट और लोवेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे कि बैट्समैन है 117 - 0। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी वाला है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, कुछ नहीं, अगर डिस्क्रीट भी है आपको सिर्फ डेटा XI देखना है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इफ द डेटा इज क्लास इंटरवल वाला, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से 100 to 110, तो आपको ये हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 110 - 0 यही देखना है सिर्फ, ठीक है। दैट विल गिव यू द रेंज, दैट इज गोइंग टू गिव यू रेंज। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ये सबसे इजी होता है, आप लोग भी एग्री कर रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत इजी। जैसे कि बैट्समैन ए के बारे में अगर हम रेंज देखें तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, एंड बैट्समैन बी के बारे में 60 - 46 40। रेंज ऑफ ए इज मोर देन रेंज ऑफ बी. So the scores are scattered or dispersed in case of A, while for B these scores are close to each other. हम क्या कर रहे हैं? We are measuring the how much is the data scattered. That's why measure of dispersion. Next coming to mean deviation. So mean deviation होता है mean यानी average, 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 average. Mean deviation. डिविएशन मतलब वो डेटा से कितना दूर है। तो 2 तरीके के मीन डिविएशन होते हैं, मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट मीन इज रिटन लाइक दिस, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इज रिटन लाइक दिस। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिविएशन फ्रॉम ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ए? बच्चों ए कुछ भी हो सकता है, ए कभी मीन हो सकता है, ए कभी मीडियन हो सकता है, ए इज जस्ट सम नंबर। सो इफ आई वांट मीन डिविएशन अलोंग ए, मीन डिविएशन अबाउट ए, इट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन फ्रॉम ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब मॉड आने वाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड आने वाला है। तो बच्चों चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। Mean deviation about mean for an ungrouped data will be summation of xi minus x bar in the mod upon n. आप देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से summation of absolute value of deviation, यानी कि ये x बार से मतलब x जो है xi x बार से कितना डिविएट कर रहा है, ये xi और x के बीच में कितना डिफरेंस है, डिविएशन यानी डिफरेंस समझ लो। So sum of absolute value of difference upon number of observation. If it is grouped, कोई बात नहीं, only fi will get multiplied, everything else is same. And नीचे capital N आएगा because it is total observation. Median आ गया तो कुछ नहीं, x बार की जगह हम capital M डाल देंगे और median निकालने सबको आता है। Same, if it is group, then multiply with fi, denominator is also total observation, summation of fi.
क्लियर? मीन डिविएशन इज द फर्स्ट क्वांटिटी। क्वेश्चन अगर आपको करना है बच्चों, क्वेश्चन मैंने बोला मैं आपसे करवाऊंगी तो नहीं यहाँ पे, बट एक आइडिया जरूर ले लेता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या टेबल्स बनाना है। एक क्वेश्चन करती हूँ, बाकी क्वेश्चन हम सिर्फ आइडिया लेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों को दिक्कत आती है कि टेबल्स क्या क्या बनाने, यार समझ नहीं आता। आपको 4-5 टेबल नहीं, यू हैव टू मेक ओनली 1 टेबल। सो इन ऑर्डर टू बी क्लियर कि वो टेबल में क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, आप क्वेश्चन रीड करो, फॉर्मूला लिखो एंड देन स्टार्ट मेकिंग द टेबल। सो इट इज मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड द डेटा इज अनग्रुप्ड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन अबाउट मीन? इट इज समेशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए xi माइनस x बार एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। करेक्ट? दैट मीन्स वी नीड अ कॉलम ऑफ xi जहां पे हम सारे वैल्यूज को लिख लें। फिर हमें मीन निकालना है बच्चों, x बार भी तो है, तो x बार कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ xi अपॉन n। ओके, फिर हम xi माइनस x बार करेंगे और xi माइनस x बार को मॉड में डाल देंगे। तो ये कुछ 3 कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना बच्चों? ओए अब यहाँ पे डेटा आप लिख लीजिए 38, 70, 48, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। हमें इसका टोटल भी चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 3 4 5 6 7 8 9। सो या डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 9। चलो निकालते हैं। ओके, समेशन ऑफ इनको सबको ऐड कर लेना है बच्चों। अब यही तो काम जो है हमको भी नहीं पसंद है और हम जानते हैं कि आपको भी नहीं पसंद है, तो हम क्या करें? सीधे सीधे उठा ले कहीं से। थर्टी एट, 70, 48, 40। हाँ 40 लिखना भूल गए क्या? यहाँ पे बच्चों एक 40 भी है, यहाँ पे एक 40 भी है डेटा में, तो मैं बस 40 एंड में ऐड कर रही हूँ। अब ये जो टोटल है दिस इज गोइंग टू बी 500। और अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10 हो चुका है। मैंने तो ऑलरेडी मेरे पास है करा हुआ, मैंने क्लास के पहले ही सॉल्व कर लिया था। जैसे आप देख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड अ लॉट, मतलब रिटर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि मुझे लेक्चर के बीच में टाइम ना स्पेंड करना पड़े। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, एग्जाम टाइम भी चल रहा है। तो 500 divided by 10, the mean is going to be 50. Now from each data you will be subtracting 50. So it's minus 12, 70 minus 50, 20, minus 2, minus 8, 5, 8, minus 4, plus 4 and minus 6, minus 10. इनका एब्सोल्यूट वैल्यू 12, 20, 32, 34, ओके 34 प्लस 8, 42 प्लस 5, 47 प्लस 8, 55 प्लस 4, 59 प्लस 4, 63 प्लस 6, 69 प्लस 10, 79 आ रहा है मुझे, गलत भी हो सकती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। 79 अपॉन 10, so the answer is coming out to be 7.9 for me. एक बार देख लीजिएगा। 12, 22, 8, ओके यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है 13, 4, 4, 6। यहाँ पे एक डेटा 63 है ना, यहाँ पे 13 आएगा, करेक्ट 13। तो मैंने 8 लिखा था, उसमें 4 और ऐड कर देते हैं। 8, 79 में 4 और ऐड कर देंगे, 79 में 4 और ऐड कर देंगे, 4 या 5,
5 5 और ऐड करेंगे 84, 8 + 5 is 13, so 84/10, 8.4 शुड बी द आंसर। प्लीज वेरीफाई कर लो यार बच्चों, तुम अगर अच्छे प्यारे बच्चे होगे तो वेरीफाई जरूर करोगे, बट ऐसे डिसाइड करते हैं कि ठीक है मुझे ये तीनों कॉलम्स की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर ये डेटा डिस्क्रीट होता सो एक कॉलम और आ जाता XI/FI, है ना, FI का कॉलम होता देन XI/FI निकालना पड़ता इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन। इफ दे वुड हैव आस्क्ड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन तो हमें मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता, या फिर मीडियन फॉर डिस्क्रीट। चलो एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये भी मीन डिविएशन अबाउट मीन है। तो मीन के लिए पहले तो मेरा कलर कहाँ है, मीन के लिए समेशन ऑफ FI/XI अपॉन कैपिटल N ये करेंगे, एंड देन मीन डिविएशन अबाउट मीन के लिए इट इज समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस X बार अपॉन कैपिटल N, राइट। 1 2 3 4 5, the number of observation is 5. I'm not going to solve बच्चों, just look at the columns which we need, XI/FI, फिर एक मल्टीप्लीकेशन चाहिए XI इंटू FI, let's do that, फिर XI माइनस X बार चाहिए, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यहीं पे ले लेते हैं जस्ट टू सेव सम स्पेस, एंड देन FI इंटू XI माइनस X बार, राइट। Then you are going to total up your XI/FI, total up this XI/FI total करके यहाँ आंसर आ जाएगा, यहाँ पे करके आंसर आ जाएगा। Same, if you have mean deviation about median and this time your data is class interval, continuous वाला डेटा है, तो फॉर्मूला तो सेम नहीं होता है। mean deviation about median is equal to summation of FI into XI minus M absolute upon capital N, right? And how do you find the median? Median क्या होगा? It is वो पूरा बड़ा सा फॉर्मूला है ना, वो करना पड़ेगा। ऐसे करके आप मीडियन निकालोगे। तो मीडियन के लिए अब ये फ्रीक्वेंसी दिया, यू विल फर्स्ट फाइंड द क्लास मार्क, इसकी मिडल वैल्यूज लिख के, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड सो ऑन। देन यू विल राइट डाउन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 6, 6 + 8, 14, 14 + 14, 28, 28 + 16, 44, 44 + 4, 48 + 2, 50। आफ्टर दैट आप लोग मीडियन निकाल लोगे, फिर XI माइनस M का एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन FI इंटू XI माइनस M। और ये मीडियन निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मीडियन क्लास ये टोटल है 50, 50/2, ये N/2, इट इज 25। अब ये 25 तो कहीं दिख नहीं रहा है बट 28 दिख रहा है, so class corresponding to 28, this is going to be your median class. Lower limit है 20, frequency of that class is 14/2, 7, cumulative frequency of preceding class, यहाँ पे frequency यानी कि cumulative frequency डालनी है बच्चों, yes or no? हाँ, ओके, ये उल्टा है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N/2, यहाँ पे F है, तो N क्या आ गया 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास है 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 14 इंटू H क्या है क्लास विड्थ, और ऐसे करके आपको जो भी मीडियन आएगा वो हर डेटा में से सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी टू गेट दी आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट मीन डिविएशन। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट विच इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। बच्चों वेरिएंस समझ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ ही गया, कुछ डिफरेंस ही नहीं है यार वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में, सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है।
वेरिएंस को वैर भी बोलते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। सो सिग्मा, अगर आपके लिए वेरिएबल एक्स है तो इट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर अनग्रुप डेटा इट इज द स्क्वायर, इट इज सेम लाइक योर ऑल योर फॉर्मूला, इट इज सेम लाइक मीन डिविएशन, ओनली डिफरेंस इज वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू था, यहां पे स्क्वायर हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू टेक्स केयर देयर इज नो नेगेटिव साइन, square will also take care there is no negative sign. So basically in deviations we don't want negative sign, right? We don't want negative sign, get rid of the negative sign. So in mean deviation put mod, in variance you take a square, and in standard deviation you take a square root. So absolute yani mod square square root, mod square square root, that's the only difference. तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज तो अलग ही है भाई साहब, उसको छोड़ दो, रेंज अलग है। बाकी तीनों में क्या डिफरेंस है, मॉड्यूलस, स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वन इज सेम लाइक वेरिएंस बट अ स्क्वायर रूट. So the formula is xi minus x bar, same like that. Now you have a square. Xi minus x bar the whole square, fi multiply if it's discrete. If it is continuous, formula remains same. Discrete, continuous, same formula. यानी grouped के लिए यदि मैं इसको grouped बोल दूं तो same formula है. ठीक है. Variance, it measures how much is the. I'll come to the shortcut method later. Standard deviation written as SD और सिंपली सिग्मा. यहां पे सिग्मा स्क्वायर था, यहां पे सिर्फ सिग्मा होगा. सिग्मा का देखिए फॉर्मूला सेम लाइक योर वेरिएंस, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट नहीं आया, यहां पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड दिस इज व्हाट योर गोल्डन फॉर्मूला इज. बच्चों ये नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला. व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ कंटिन्यूअस डेटा, दिस इज व्हाट यू विल यूज. ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा. आप बोलोगे मैम ये फॉर्मूला से नहीं आएगा क्या कंटिन्यूअस के लिए? वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट यू नो इन द स्क्वायर रूट, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिनोमिनेटर आ जाता है स्क्वायर रूट में, दिक्कत हो जाती है. यानी 39/3.5 का स्क्वायर रूट लो तो डिनोमिनेटर में नंबर आ गया, फिर स्क्वायर रूट पेन हो जाएगा. तो जस्ट टू गेट रिड, इधर देखो कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, बस n को यहां वहां कॉमन लेके थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/n स्क्वायर रूट n इंटू समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi xi द होल स्क्वायर. कुछ बच्चे यहां पे भी एक फॉर्मूला लिखते हैं विच इज समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर. इसका ये दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, चाहे ये यूज करो या ये यूज करो. सिमिलरली योर ऑल्सो इसका एक ऑल्टरनेटिव आप लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों का ही, इन दोनों का ऑल्टरनेटिव होता है समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर. fi xi स्क्वायर एंड fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर, ये पूरा दिस इज नथिंग बट मीन, ये मीन आ जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की. तो मैंने आपको सिंपली क्या दिया, फॉर वेरिएंस अनग्रुप्ड के लिए दिस फॉर्मूला, ग्रुप्ड के लिए दिस फॉर्मूला. इट्स ऑल्टरनेटिव कैन बी दिस, यू कैन यूज एनी वन, डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड अब आपके स्टेप डिविएशन से आता है. ये शॉर्टकट मेथड कब यूज करना है? जब भी आप स्टेप डिविएशन कर रहे हो. एसडी लिखूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे स्टैंडर्ड डिविएशन से, मैं स्टेप डिविएशन लिख देती हूँ. यानी जब भी आप डेटा को छोटा कर रहे हो, xi की जगह yi कर रहे हो, है ना, डेटा में से यू आर सब्ट्रैक्टिंग सम वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय सम वैल्यू, तो आपका जो वेरिएंस है इट इज ये h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n इंटू समेशन ऑफ fi yi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi yi द होल स्क्वायर. व्हाट इज yi जो आपने डेटा को a सब्ट्रैक्ट करके h से डिवाइड किया. अब ये फॉर्मूला नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना,
यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये अगर याद है तो शॉर्टकट मेथड आप कब यूज करोगे, जब भी स्टेप डिविएशन आएगा, जब भी स्टेप डिविएशन कर रहे हो। स्टेप डिविएशन मतलब फ्रॉम द डेटा यू आर सब्ट्रैक्टिंग सम अज्यूम्ड मीन एंड डिवाइडिंग बाय सम क्लास विड्थ। सो कैन यू सी दैट फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला सेम है, बस xi की जगह yi है, xi की जगह yi है, एंड बिकॉज आपने h से डिवाइड किया है, यहां पे h से मल्टीप्लाई किया है। सेम फॉर्मूला, बट बिकॉज इंस्टेड ऑफ xi you have yi and yi is divided by h, you have to multiply by h. That's the only thing. ये सब मैम आप बोलोगे मैम a सब्ट्रैक्ट किया है तो a ऐड करो, जरूरत नहीं है, doesn't matter. So this is your shortcut formula whenever you're using step deviation to solve the question. आप ये अप्रोच लोगे. What is the final standard deviation for x? It is h upon n square root n summation of fi yi square minus summation of fi yi the whole square. y है इधर, x नहीं है. Please many students get confused. This is y. y जब भी आप स्टेप डिविएशन यूज कर रहे हो, x जब आप स्टेप डिविजन नहीं यूज कर रहे हो. इफ यू आर नॉट यूजिंग स्टेप डिविजन देयर इज x, और यहाँ पे h भी नहीं है, ओनली 1. बट इफ यू आर यूजिंग स्टेप डिविजन मतलब आप एक स्टेप नीचे कर रहे हो, h से डिवाइड कर रहे हो, तो मेक श्योर यू आर मल्टीप्लाइंग विथ h. एंड द सेम फॉर्मूला पीछे मैंने लिखा है स्क्वायर करके. देखो स्क्वायर स्क्वायर, और ये वो स्क्वायर रूट था ना वहां पे, दैट स्क्वायर रूट इज रिमूव्ड. h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n summation fi y square minus fi y the whole square. h square upon, because variance is nothing but standard deviation का square. तो किसी क्वेश्चन में पूछा है वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों बताओ, आप वेरिएंस निकालो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन. तो आपको कौन से फॉर्मूलाज याद करना है? वंस अगेन आई रिपीट, यू ओनली हैव टू रिमेंबर 1 2 3. सो ये सॉरी 1, ये दोनों सेम है, 2 ये 3, 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट डाल दिया, 4 5 6 6 फॉर्मूले याद कर लिया आपने. अब उसी को हमने h और y से रिप्लेस कर दिया 7, और इसी में को स्क्वायर कर दिया, तो ये 8th फॉर्मूला आ गया. तो सारे फॉर्मूलाज इस तरीके से लिंक्ड है. इसके भी कुछ क्वेश्चंस है आई थिंक अपने पास. देन वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, एंड इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी. जब दो डेटा है और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट पूरा वेरिएंस निकालो और फिर कंपेयर करो. सीधे फॉर्मूला, मतलब वेरिएंस तो निकालना ही है, बट सिर्फ वेरिएंस से नहीं, वेरिएंस अपॉन मीन, ये दोनों ज्यादा बेटर कंपैरिजन देगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा वेरिएंस अपॉन मीन इनटू 100. इफ greater the coefficient of variation, greater is the variability. Less coefficient of variation, less variable. Less variable का मतलब ही होता है more stable, more consistent और more stable, है ना. कम variable है यानी ज्यादा stable है. So less coefficient variation. So in this you can expect questions, बहुत direct straightforward questions आता है. दो data दिया होगा, they'll just say which of the employees more consistent. तो आप उनका CV निकालोगे. हम बोलते हैं ना CV, सबमिट योर CV, करिकुलम विटे नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, और फिर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है वो भरोसेमंद नहीं है, वो ज़्यादा वेरिएबल है, वो ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है. जिसका CV कम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो ज़्यादा स्टेबल है. एंड देन यस, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों. देयर आर सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स. What happens when? अब क्वेश्चन आता है कि there is a data given, ध्यान से सुनना. There is a data given and they'll say each data is added by 5. What happens to the variance? Or they'll say each data is divided by 9. What happens to the mean? ऐसी चीजें वो देते हैं अपने को, है ना.
तो क्या हम वापस से हर डेटा को 9 से डिवाइड करके फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, या फिर आपने ऑलरेडी वेरिएंस कैलकुलेट किया, अब हर डेटा में 5 ऐड करोगे और फिर से वेरिएंस कैलकुलेट करोगे? नहीं, एक डायरेक्ट अप्रोच है। देखना, चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स whenever you add your data or subtract your data with a particular number h, whenever your data is added or subtracted with some fixed constant h बोलो, k बोलो, कुछ भी चलेगा। एंड चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है whenever you multiply your data or divide your data with some constant number h, मतलब आपके डेटा में हर एक वैल्यू h से मल्टीप्लाई हुई है या आपके डेटा में हर एक वैल्यू h से डिवाइड हुई है, उसको हम चेंज ऑफ स्केल बोलेंगे। तो आइए देखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का क्या असर पड़ता है अलग अलग क्वांटिटीज पे। मीन, मीडियन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, हाउ आर दे अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल? दैट मीन्स व्हेन यू ऐड h, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट h, what happens to them? When you multiply h, when you divide each data with h, what happens? ये है आपका मैजिकल टेबल बच्चों, आज का मैजिकल टेबल यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी के अभी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसी के बेसिस पे आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हो। This is what will help you in solving the miscellaneous exercise. My dear students, when you add or subtract your data with h, the mean will also be added by h and subtracted by h. अगर आप हर डेटा को h से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। कैन यू सी? यस। व्हाट अबाउट मीडियन? सेम, मीन का कॉपी। मीडियन भी ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। बट अब ये तीनों जो है ना, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। ये क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये भाई सेंट्रल टेंडेंसी जैसे जैसे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो भी वैसे वैसे परफॉर्म कर रहा है। बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ना, इनको चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनसी का मतलब है नो चेंज। एनसी इज इक्वल टू नो चेंज। सो दिस मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनको चेंज ऑफ ओरिजिन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने हर डेटा में 5 ऐड किया तो मीन डिविएशन सेम रहेगा, वेरिएंस सेम रहेगा। जो पहले था 5 ऐड करने के बाद भी वही है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो पहले था, वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन का, अब भी वही वैल्यू है। हर डेटा में आपने 5 ऐड कर दिया फिर भी स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, नो चेंज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नो चेंज। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का चेंज होता है। इफ ईच डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय h, मीन डिविएशन भी h से मल्टीप्लाई हो गया, h से डिवाइड हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपने हर डेटा को h से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी h से मल्टीप्लाई हुआ, h से डिवाइड हुआ। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। वेरिएंस थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। इफ ईच डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय h, वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस होता ही है सिग्मा स्क्वायर। Each data is multiplied by h, variance is multiplied by h square. Each data is divided by h, variance will be divided by h square. Remember this, variance and ये no change for change of origin in case of measures of dispersion. ठीक है, समझ आ गया? ये टेबल याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए, तो अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। यही था मेरी तरफ से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के लिए, और कुछ नहीं है, बस सॉल्विंग ही सॉल्विंग है हमारा गुरु। क्यों गुरु? ये देखिए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। हमें एक्सआई दिया, ये अनग्रुप डेटा है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 ऐड करना पड़ेगा बराबर। फ्रीक्वेंसी है नहीं, मीन कैसे मिलेगा? मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्सआई अपॉन एन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे क्या बोला है? वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला यानी कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। अब एक्स आई निकाला, एक्स बार भी निकाल दोगे, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार कर दो एंड देन एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। यही 3 कॉलम्स बनेंगे और तो कुछ बनने नहीं वाला। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? बस ध्यान से करना पड़ेगा, होश और आवाज में।
एक कैलकुलेशन क्या, बंटी क्या कर रहा है, एक कैलकुलेशन क्या, चिंटू कौन सा नया रील, ये सब नहीं करना है हमको। रील व्हील को साइड में रख के कैलकुलेशन करना है फुल फोकस के साथ। ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट कंक्लूजन। पूरा कैलकुलेशन कर लिया, भर भर के भी पेज आता है, पेज भर भर के कैलकुलेशंस आते हैं, एक नंबर गलत हो गया ना, खलास, गेम ओवर हो जाएगा बच्चों। ये तो चलो सिंपल था। एक मैं ये कर देती हूँ शॉर्टकट मेथड वाला, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड है तो इसमें स्टेप डिविएशन तो आएगा ही, और वो नया वाला फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला यूज होने वाला है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए? इट वॉज h/n, देन स्क्वायर रूट में n इंटू समेशन ऑफ fi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi द होल स्क्वायर। भाई साहब मैं तो हमेशा फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर ही मुझे समझ आता है आगे क्या करना है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन, और सॉरी मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू, अब हम स्टेप डिविएशन यूज करेंगे शॉर्टकट में, तो हर डेटा में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ वैल्यू डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो मीन डिविएशन, मीन विल बी, डिवाइड किससे कर रहे हैं देख लेते, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 64 को मीन लेते हैं, ये बीच का नंबर है, सो लेट अस सब्ट्रैक्ट ईच डेटा विद 4। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है, कुछ ऐसा है नहीं, 1 है, 1 इज डिविजिबल बाय ऑल, सो क्लास विड्थ इज 1 एज सच, डिनोमिनेटर 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस वाई बार इंटू एच, यानी कि अब अपने पास a क्या है 64 प्लस y बार क्या होगा बच्चों, समेशन ऑफ fi yi अपॉन कैपिटल N इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस जो कुछ भी आएगा अपने पास वो हम देख लेते हैं। आ जाओ, तो हमको कॉलम बनाना है xi का, fi का, देन व्हाट एल्स डू वी नीड, we need yi which is xi minus 64 upon 1, where we also need fi into yi, then we need yi square, फिर हमें चाहिए fi into yi square, ठीक है। और कुछ कॉलम्स मिसिंग है, देख लीजिए एक बार, 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। क्यूमुलेटिव, ये मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी, हर डेटा में से 64 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। When you add, okay, yi को नहीं करना है, fi into y, 4 2s are -8, 3 1s are -3, -24, नहीं -29, 0, 12 1s are 12, 20, 12, 20. How much is this coming out to be total? 20, 20, 40, 50, 60, 64 इधर है, और yes, what is the other thing? देख लेते हैं, मैंने ऊपर 12 2s are 24 एंड 29 ऊपर नीचे कर दिया है बच्चों एज एक्सपेक्टेड। 2 4s are -8, 1 into -3 -3, 12 into 2 -24, -29, फिर 25 into 0 0, 12 1s are 12, 10 2s are 20, 4 3s are 12, 5 4s are 20, ठीक है।
ये कुछ है मेरे पास। अगेन 40 64 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 24 है, 29 32 40 64। बच्चों ये तो जीरो आ गया यार, वी गेटिंग दिस एज जीरो समेशन ऑफ एफ आई वाई। अगर आप यहाँ पे सेपरेटली वाई बार निकालोगे, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन कैपिटल एन, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई वाई आई, इट इज जीरो एंड जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो। सो जीरो इंटू क्लास विड्थ 1 है आंसर। मीन इज 64, मीन इज 64। एक बार ये भी कैलकुलेट कर ही लीजिए, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू हाउ मच। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज बच्चों मेरे ख्याल से 100 आ रहा है, वहां पे लिखा है ऐसा, ठीक है। 100 अगर आपको भी आ रहा है तो बता देना, नहीं आ रहा है तो भी बताना। सो 0 अपॉन 100 0 64, ठीक है। h क्या है, h इज द क्लास विड्थ। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ, अज्यूम मीन इज 64, क्लास विड्थ इज 1, xi minus a by h. So if you substitute here, h is 1, n is 100, and in the square root you will have 100 into जो भी वैल्यू आएगा माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई, तो जीरो आ गया। सो जीरो स्क्वायर इज ऑलमोस्ट गॉन, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आएगा एफ आई वाई आई स्क्वायर के लिए। सो वाई आई स्क्वायर ईजी है इसलिए कर रही हूँ, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 0 1 4 9 16। ओके, 16 2s are 32, 1 9s are 9, 12 4s are 48, 29 1s are 29, 25 into 0 0, 12 1s are 12, 10 4s are 40, 4 9s are 36 and 16 5s are 80। ये कितना आ रहा है एफ आई वाई आई स्क्वायर? दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू आई थिंक 286, राइट। अब यहाँ पे डाल देते हैं 286 एंड सिंपली 100 इंटू 286 डिवाइड, 100 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सिग्मा एक्स है। सिग्मा एक्स क्यों है, क्योंकि अंदर हमने y वाली वैल्यू डाली एंड एच एन एन से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लिया है। सो यस, व्हाट एवर वी आर गेटिंग इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। 28600, 286 का स्क्वायर रूट 169.1 अपॉन 100 विच इज गोइंग टू बी 1.69। ये हमें फाइनल स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। मीन उन्होंने बोला था मीन इज सेम एज अज्यूम मीन 64। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का है, अगला क्वेश्चन क्लास इंटरवल का। एक हिंट है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस, तो आप इन्होंने खुद ही लिख के दिया है, फर्स्ट मेक द डेटा कंटिन्यूस बाय मेकिंग क्लासेस लाइक दिस। 0.5 लोअर लिमिट को बढ़ा कम कर दिया, 32.5 लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा दिया, एक जगह कम एक जगह इंक्रीज। टोटल 1 का आप बैलेंस कर रहे हो, एक जगह कम 0.5 से एक जगह बढ़ा दे रहे हो। सो दैट विल बी अ क्लास इंटरवल। फिर क्लास मार्क लिखोगे, फ्रीक्वेंसीज लिखोगे। इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कौन से मेथड से करना है, बट फॉर कंटिन्यूस वी यूज दिस मेथड ओनली। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, यस। अगर वो बोलते वेरिएंस तो कुछ नहीं, बस स्क्वायर कर देते। अब पता चल रहा है ये फॉर्मूला कितना मस्त है। सब लोग ये सोचो कि वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्लास विड्थ कितने का है, 36 माइनस 33, 3 का क्लास विड्थ है। चलो एच तो हमने 3 ले लिया। एन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, दैट इज योर एन, 100 आ रही है, ठीक है। दिस टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, ओके। अज्यूम मीन एच इज 3। अज्यूम मीन क्या लेना चाहिए, अज्यूम मीन शुड बी द मिडल मोस्ट वैल्यू। तो 32.5 से लेके 52.5 के बीच वाला वैल्यू, 32 से 52 20 का डिफरेंस है। सो 32 और 52 के बीच में 10 आगे, 42.5 विल बी आवर अज्यूम मीन, ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या लगेगा बच्चों, मीन तो इन्होंने पूछा नहीं है। सो वी विल राइट डाउन द क्लास इंटरवल।
or just class. Then we'll write down the frequency. क्या cumulative frequency चाहिए? No, median is not that. Only in median you need cumulative frequency. Then you will write class mark यानी middle value सबका. यहाँ पे continuous class लिखना है, class mark लिखना है. फिर next column we need yi which is equal to xi minus 42.5 divided by 3. ठीक है, yi. उसके बाद हमें लगेगा yi square. If you can see, then we'll need fi into yi square and we'll also need fi into yi. ये सारे कॉलम्स बनाएंगे हम लोग. fi yi स्क्वायर यहाँ सब्सटीट्यूट, fi yi जो भी टोटल आएगा स्क्वायर करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट. n is already your 100 into something minus something square. And on solving you should be getting your answer. Are you very clear with this? All right, superb, superb बच्चों. अच्छा, मीन पूछा है इन्होंने. ओके, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन. अच्छा, अगर मीन पूछा है तो कोई बात नहीं. एक्स बार क्या होता है? ए प्लस समीशन वाई बार इंटू एच. ए कितना है? 42.5 प्लस वाई बार जो भी आएगा आपको इंटू एच इज 3. वाई बार का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन एन. एन इज 100. एक एफ आई वाई आई बना ही रखा है आपने, वहां से आपको मीन भी आ जाना है. ठीक है, सो आई थिंक इट इज 25/100 1/4. हाँ, एंड या द एन बच्चों, ये एच जो है, एच इज नॉट 3, एच इज 4. मेरा मिस्टेक है यहाँ पे, एच इज गोइंग टू बी 4. वाई 4? बिकॉज हम जो क्लास इंटरवल बना रहे हैं 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5. तो अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 36.5 में से 32.5 जाएगा तो 4 का डिफरेंस होगा, राइट? तो यस, द क्लास विड्थ इज 4. एच की वैल्यू 4 आ रही है. यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी. ईच वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 4, subtracted from 42.5 divided by 4. So 1/4, ये 4 कैंसिल. अगेन मीन हमको 42.5 प्लस 1 यानी 43.5 आ रहा है. मीन इज 43.5. दे हैव आस्क्ड अस द मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. आई थिंक जो भी आंसर आता है प्लीज डू सॉल्व, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन. 30.84. और अगर इन्होंने यूनिट दे रखा है mm, तो आप यूनिट डालोगे क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन 30.84 mm? नहीं, यूनिट हम नहीं डालेंगे. व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बच्चों, वेरिएंस 30.84 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 5.55. ये है अपना वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5.55. तो वी डोंट हैव टू गिव एनी यूनिट बिकॉज ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. ये ऑलरेडी एक मेजर है, क्वांटिटी है, इसका कुछ यूनिट नहीं. ये एरिया, पेरीमीटर, स्क्वायर, ये सब नहीं है. इट इज जस्ट सम डेटा विच गिव्स मी एन आइडिया अबाउट द डेटा फर्दर. सो दैट हैज नो यूनिट. दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है. You enjoyed it thoroughly because I did enjoy. If you have any doubts, do ask me in the comment section and let's meet soon in the next class. Thank you so much. Bye bye, bachcho. Take care of yourself. Keep smiling. Bye.